آج ہم سنیں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور یہیں سے مانو جیون کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ گندم کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سیلون دویپ پر اتارا گیا تھا اور ماں حوا علیہ السلام کو جدہ نام کے شہر میں اتارا گیا تھا۔ شیطان کی اس چال میں مور اور سانپ نے بھی اس کی مدد کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مور کو بلایا اور فرمایا، ہے مور، تمہارا جرم بہت بڑا ہے، حالانکہ تم نے سیدھے گناہ نہیں کیا، پھر بھی تم پوری طرح سے نردوش نہیں ہو، کیونکہ تم جانتے تھے کہ میری اجازت کے بنا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم نے ایک اجنبی کو وہاں جانے میں مدد کی ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ پہلا، تمہاری جگہ اب جنت میں نہیں ہوگی۔ دوسرا، تمہارے جسم کی اتلنیہ خوبصورتی کم کر دی جائے گی، خاص کر تمہارے پیر جو سب سے سندر تھے انہیں بدصورت کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مور کو جنت سے نکال کر زمین پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سانپ سے کہا، ہے سانپ، میں نے تمہیں سبھی سرشٹی میں سب سے زیادہ خوبصورتی دی تھی، میں نے تمہیں جنت میں رکھا تھا، لیکن تم نے میرے آدیش کے خلاف کام کیا ہے، تم نے شیطان کو میری اجازت کے بنا جنت میں داخل کرایا ہے، اب تمہیں بھی سزا ملے گی، تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، تمہارے پیر ختم کر دیے جائیں گے، اب تم زندگی بھر بنا پیروں کے رینگتے ہوئے چلو گے، اور جس منہ سے تم نے شیطان کو جنت میں داخل کرایا تھا اس منہ میں اب خوشبو کی جگہ زہر بھر دیا جائے گا، انسان تمہیں دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سانپ کو بھی جنت سے نکال کر زمین پر چھوڑ دیا۔ اب جنت سے نکل کر حضرت آدم علیہ السلام سیلون دویپ کے ریگستان میں اور بی بی حوا علیہ السلام جدہ شہر میں اتری۔ چاروں طرف اندھیرا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز۔ اس انجانی دنیا میں اچانک اتر کر دونوں ہکا پکا اور دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام سیلون دویپ پر بیٹھ کر رو رہے تھے اور حوا علیہ السلام جدہ میں بیٹھ کر اسی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ ورننوں کے انوسار انہوں نے اسی طرح 300 سال تک آنسو بہائے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے ان دکھی اور ٹوٹے ہوئے دل کے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالی۔ پھر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدیش دیا کہ ہے جبرائیل، میرے بندے آدم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ مکہ جائیں اور وہاں میرے لیے حج کریں۔ اللہ کا آدیش پا کر ہی حضرت آدم علیہ السلام سفر کے لیے نکل پڑے۔ مفسروں نے لکھا ہے، جب آدم علیہ السلام سیلون دویپ سے مکہ کی طرف چلنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو اتنا قریب کر دیا کہ صرف 30 قدموں میں وہ مکہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت کے پاس بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ہے میرے مالک، میری اور میری پتنی کی غلطیاں معاف کر دو، مجھے نہیں پتا حوا اب کہاں اور کس حال میں ہے، اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کہاں ہوں، ہے میرے رب دیا کرو، ہماری غلطی معاف کر دو اور ہمیں پھر سے ملا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہونے لگی۔ انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، اچانک ان کی نظر کے سامنے عرش معلی ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ درشیہ دیکھ کر آدم علیہ السلام کی ایک پرانی یاد تازہ ہوئی۔ جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا تب انہوں نے پہلی بار اس عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے پھر سے ہاتھ اٹھائے اور بڑے نرمی اور بے چینی کے ساتھ کہا، ہے ہمارے رب، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی مادھیم سے ہماری غلطیاں معاف کر دو۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تب رحمت الہی کا سمندر جیسے امڑ پڑا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی پتنی کی سبھی غلطیاں معاف کر دی، دونوں کو پوری طرح سے پاک صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے آدم، آپ نے اپنی دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، آپ کی اور آپ کی پتنی کی غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ دعا اسی وقت کرتے جب آپ جنت میں تھے تو آپ کو کبھی بھی زمین پر آنا ہی نہیں پڑتا۔ یہ بات سن کر آدم علیہ السلام نے کہا، جبرائیل،
मैं तो इतनी चिंता में वो कलिमा, वो शब्द बिल्कुल भूल गया था। मुझे याद ही नहीं था कि वही मेरी नजात थी। लेकिन आज अचानक खुदा की मेहरबानी से मेरे दिल में वो कलिमा जाग उठा है और मैंने उसी कलिमे के वसले माध्यम से अल्लाह से दुआ मांगी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच तब बात चल रही थी। ठीक तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर दूर एक मैदान की तरफ पड़ी और वहां से जद्दा की तरफ से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाती हुई आ रही थी। ये दृश्य देखकर आदम अलैहिस्सलाम और बैठे नहीं रह पाए। वो दौड़कर उस आने वाली हस्ती को गले लगा लिया और दोनों शोक और दुख में लिपट गए। 300 सालों के उन दिनों के बाद ये मुलाकात कैसा मंजर रहा होगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतने लंबे बिछोड़े के बाद शौहर को पास पाकर रो पड़ी। उनकी आंखों में अतुलनीय सुकून और करुणा थी। उनके आंसू, उनकी दुआएं, सब कुछ जमा हुए दर्द को चीरकर बाहर निकल आई थीं। फरिश्ते भी ये दृश्य देख रहे थे। उनका मन भी भराया। वे भी इन दोनों के रूहानी दर्द में शरीक हुए और दिल से शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह की मेहरबानी के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कुछ राहत मिली, लेकिन जिंदगी तब भी आसान नहीं थी। हजरत आदम और बीबी हव्वा अपना दिन पेड़ के फल और पानी से गुजारा करते थे। वो जिंदगी बहुत मुश्किल और तकलीफ दे थी। इस मुश्किल वक्त में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक जोड़ा ऊंट और एक जोड़ा गाय लाए, साथ में गेहूं के कुछ बीज भी लाए और फरमाया, इन्हीं से तुम लोग रोटी पानी का इंतजाम करोगे। ऊंट से जमीन जोतो, गेहूं को। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन हम तो कुछ नहीं जानते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हंसे, ये मत सोचो, मैं सब सिखा दूंगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें खेती करने का तरीका सिखाया, कैसे ऊंट से हल चलाना है, बीज बोना है, सब कुछ। गेहूं के दाने जमीन में डालने के 7 घंटे के अंदर ही आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काट ली। इसके बाद गेहूं से भूसी अलग करना, उसे पीसकर आटा बनाना और रोटी गूंथने का तरीका बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को सिखाया गया। लेकिन रोटी सेकने के लिए आग की कमी थी। ठीक तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोज़ख से हल्का सा धुआं लेकर आए। जब वो धुआं जमीन पर रखा गया, जमीन तेजी से जलकर एक गहरा गड्ढा बन गई। वो धुआं दोज़ख की तरफ ही फिसल गया। बार बार कोशिश करने पर भी दोज़ख का धुआं जमीन पर रुक नहीं पाया। तब अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये आग जमीन पर तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम इसे रहमत के जरिए यानी रहमत की नदी में धोकर ना लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस धुएं को 7 बार रहमत की नदी में धोया और फिर जमीन पर लाए। तभी वो अपनी असली गरम हवा रूपी आग बनकर स्थायी हुई और रोटी सेकने के लिए मुनासिब हो गई। और इस तरह अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की मदद और ज्ञान व मार्गदर्शन के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का पहला जीविका का रास्ता सीखा। यही वो रास्ता है जिस पर इंसानों का सफर आगे बढ़ा, मुसीबत के बाद रहमत का रास्ता। दूसरी तरफ शैतान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दूसरी बार भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि जब भी उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने की कोशिश की, तभी वो खुद बार बार मुश्किल में पड़ा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को निर्देश दिया कि वे अब शांति और सुकून के साथ दुनिया में रहें। दोनों ने अल्लाह के आदेश के अनुसार वहीं रहना शुरू किया और वहीं से उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला की कुदरत का ये नियम था कि बीबी हव्वा एक बार में 2 बच्चे देती थीं, एक बेटा और एक बेटी। और यही हिकमत थी कि एक जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से शादी करेगा और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से शादी करेगा। जो पहला जोड़ा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम काबिल था और बेटी का नाम अकलीमा। अकलीमा बहुत खूबसूरत और रूपवान थी। इसके बाद दूसरे जोड़े में बेटा हाबिल और बेटी सज्जा पैदा हुई। सज्जा अकलीमा जितनी सुंदर नहीं थी। इस तरह बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हर साल एक जोड़ा बच्चे को जन्म देती रही और इतिहास में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के 180 जोड़े बच्चे पैदा हुए थे। जब पहले 2 जोड़े बड़े हुए, तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि उनकी शादी करनी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अब तुम्हारा निकाह होगा और इसका तरीका ये है, पहले जोड़े का बेटा दूसरे जोड़े की बेटी से
और दूसरे जोड़े का बेटा पहले जोड़े की बेटी से निकाह करेगा, यानी काबिल का निकाह सज्जा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से होगा। ये सुनकर काबिल ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी सगी बहन अकलीमा से ही शादी करूंगा, सज्जा से नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है, सहोदर भाई बहन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, तुम अकलीमा से शादी नहीं कर सकते। लेकिन काबिल जिद करने लगा। उसने कहा, मुझे सबूत दीजिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी भी कीमत पर सज्जा से शादी नहीं करूंगा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेंगे वही हकदार माना जाएगा। उस वक्त कुर्बानी आज की तरह नहीं होती थी। उस दौर में जब कोई चीज कुर्बान की जाती थी तब आसमान से आग उतरती थी और उस कुर्बानी को जलाकर राख कर देती थी। यही निशानी थी कि अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल किया है। अगर आग उतरती तो समझ लिया जाता कि अल्लाह ने कबूल किया है, अगर नहीं उतरती तो पता चलता कि वो कबूल नहीं हुई है। वालिद आदम अलैहिस्सलाम के फैसले के अनुसार दोनों भाइयों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने एक सुंदर मोटा ताज़ा दुम्बा कुर्बान किया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी जमीन से मिले मामूली सब्जियां और अनाज पेश किए। उस वक्त सब्जी और अनाज की भी कुर्बानी पेश की जा सकती थी, लेकिन फर्क ये था कि हाबिल ने ईमानदारी और सच्चे ईमान के साथ अपनी सबसे अच्छी चीज दान की थी, जबकि काबिल ने नफ्स से हारकर निकृष्ट और खराब चीजें पेश की थीं। फिर क्या हुआ? आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी उस दुम्बे को जलाकर राख कर दिया। ये निशानी थी कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की है। लेकिन काबिल की सब्जियों और अनाज का कुछ नहीं हुआ। वे वहीं पड़े रहे, निस्तेज और ठंडे। अल्लाह ने उन्हें कबूल नहीं किया। अब फैसला साफ था, हाबिल का निकाह अकलीमा से ही होगा। लेकिन काबिल इस उपमान, इस हार को सह नहीं पाया। उसके दिल में आग लग गई, ईर्ष्या की आग। उसने गुस्से में कांपते हुए कहा, तू अकलीमा को छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल ने शांत तरीके से ईमान के नूर से जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर कायम रहूंगा। तू मुझे डराकर धमकी देकर मेरे रास्ते से हटा नहीं पाएगा। ये बात सुनकर काबिल के दिल में तूफान मच गया। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने भाई को कत्ल करने का संकल्प कर लिया। इधर हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम काबे की जियारत के लिए मक्का की तरफ चल दिए थे, और उधर काबिल को मौका मिल गया। शैतान ने देखा अब इंसानों के दिल में फिर से जगह बनाई जा सकती है। वो काबिल के सामने एक राही के भेष में आया। काबिल ने देखा वो राही एक सांप को रास्ता पार करते देखकर फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर चोट मारी। सांप तड़पा और मर गया। राही चला गया, लेकिन काबिल का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसने सोचा यही वो तरीका है, यही रास्ता है। इसके बाद वो अपने भाई हाबिल की तलाश में निकला। थोड़ी दूर जाकर देखा हाबिल भेड़ों के झुंड के पास अभी सोया हुआ है। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने एक भारी पत्थर उठाकर करीब पहुंचा और अचानक उस पत्थर से हाबिल के सिर पर चोट मारी। हाबिल चीख उठा, लेकिन फिर काबिल ने दूसरी चोट मारी और सब कुछ शांत हो गया। दुनिया में पहली बार इंसान का पहला खून बहाया गया। हाबिल अब इस दुनिया में नहीं थे। काबिल के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। अब नया सवाल, अब मैं क्या करूं? उसकी देह का क्या होगा? अगर मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहा तो बाकी भाई बहन सब जान जाएंगे। वो परेशान हो गया, रोने लगा। उसी वक्त उसने देखा दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। एक कौवे ने दूसरे को मार डाला, फिर अपनी चोंच और पंजों से मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया और मरे हुए कौवे को उसमें डालकर मिट्टी से ढक दिया। काबिल के मुंह से निकला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे से भी सीख नहीं सका। और उसने ठीक उसी तरह अपने भाई हाबिल के मुर्दा जिस्म को दफन कर दिया, बिना जनाजे के दफन कर दिया। वो दिन था जब इंसान ने पहली बार इंसान का खून बहाया था और पहली बार मिट्टी ने किसी इंसान को अपने अंदर छिपाया था। बहुत सी तफसीरों में कहा गया है कि वे दोनों कौवे फरिश्ते थे। अल्लाह ने उन्हीं के जरिए इंसान को सिखाया कि इंसान को कैसे दफन करते हैं, क्योंकि तब तक इस दुनिया में मौत का कोई नमूना नहीं था, ना ही दफन का कोई रिवाज। इस घटना से इंसान को मौत और दफन की पहली सीख मिली।
काबिल समझा कि अब रास्ता साफ है, वो अकलीमा से शादी कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो खुशी के साथ आगे बढ़ा, तभी अल्लाह के हुक्म से उसका पैर मिट्टी में अटक गया। वो खुद को खींचकर बाहर नहीं निकाल सका। वो बार बार अल्लाह का जिक्र करने लगा और दया मांगने लगा। अल्लाह का फैसला आया, हे पापी, जिसने अपने खून के रिश्ते को तोड़ा है, उसकी सजा ये होगी कि उसे जिंदा रहते हुए मिट्टी में दबा दिया जाएगा। मिट्टी ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो चिल्लाया, दया की भीख मांगी और फिर उसने वो कलेमा पढ़ा जिसका असर हजरत आदम पर हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके प्यासे होठों से वो कलेमा निकलते ही अल्लाह ने फरमाया, मिट्टी उसे छोड़ दे, और मिट्टी ने उसे छोड़ दिया। काबिल समझा कि वो अब आजाद हो गया है, लेकिन उसकी नीयत तब भी बिगड़ी हुई थी। वो अकलीमा के पास पहुंचकर गुस्ताखी करने लगा और फिर अल्लाह ने उसे विभिन्न सजाओं के हवाले कर दिया। उसे एक वीरान सुनसान देश में निर्वासित कर दिया गया और वहां एक फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि उसे बार बार पत्थर से मारकर सजा दी जाए। चोट लगेगी, फिर ठीक होगा, फिर चोट लगेगी, और ये सजा कयामत तक चलती रहेगी। पत्थरों की जोरदार चोट से काबिल बेहाल हो उठा। आसमान चीरकर उसकी तकलीफदेह चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तब उसे दूसरी बार चोट मारी गई। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज अदा करके जब देश लौटे तो देखा हाबिल कहीं नजर नहीं आ रहा है। आदम और हव्वा दोनों बेचैन हो उठे, क्योंकि हाबिल उनका सबसे प्यारा बेटा था। हाबिल नेक था, सच्चा था, हिम्मती था और माँ बाप की हर बात का सम्मान करता था। इसलिए जब उसे ढूंढा नहीं जा सका तो दोनों का दिल टूट गया। लेकिन काबिल की बात किसी को याद भी नहीं आई, क्योंकि उसका व्यवहार ही खराब था। वो ना इबादत करता था, ना किसी का सम्मान। माँ बाप भी हमेशा उससे दूर ही रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अपने प्यारे बेटे की तलाश में दीवाने हो गए। दुनिया के कोने कोने में ढूंढने लगे। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके रोते हुए चेहरे देखकर और सब्र नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हे आदम, आपका प्यारा बेटा हाबिल आपके नाफरमान बेटे काबिल ने उसे कत्ल कर दिया है और बिना जनाजे के फला जगह दफन कर दिया है। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कांप उठे। रोते रोते बोले, हे जिब्राइल, मुझे मेरे बेटे की कब्र दिखा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबिल की कब्र तक पहुंचे। बोले, यही है हाबिल की कब्र। आदम और हवा दोनों ने पहले उनकी जनाजा पढ़ी, फिर कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। यहाँ तक कि तकलीफ से बेहाल होकर आदम अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदी और हाबिल की देह को बाहर निकाल लिया और एक संदूक या बक्से में भरकर घर ले आए। रोज 8 से 10 बार वो बक्सा खोलकर हाबिल का चेहरा देखते आंसू बहाते थे। उनका हृदय आर्तनाद करता था, आंखें नम हो जाती थीं। आखिरकार एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, हे आदम, मुर्दे को इस तरह घर में रखना अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है। अल्लाह की संतुष्टि के लिए इसे दफन कर दीजिए। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को बुलाया, जनाजा दोबारा पढ़ी और अपने घर के एक कोने में हाबिल को दफन कर दिया। इसके कुछ समय बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा दिया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। वो आदम की औलादों में सबसे नेक, पुण्यवान और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की थी। हाबिल की कमी शीस ने आदम के दिल में भर दी। वो हमेशा अपने बुजुर्ग पिता की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से कहा, मेरे लिए कुछ फल लेकर आओ। सब चले गए, लेकिन शीस वहीं रह गए। आदम ने पूछा, ओह शीस, तुम फल लेने क्यों नहीं गए? शीस ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, आपने तो जन्नत के मीठे फलों का मजा लिया है। इस दुनिया के बेस्वाद फल मैं आपके सामने कैसे पेश करूं? अगर आप चाहें तो अल्लाह से दुआ करें, वो आपको जन्नती फल अता फरमाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शीस की बात सुनकर बड़े विनम्रता से बोले, ओह मेरे प्यारे बेटे, मैंने तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ गलती की थी। गंदुम खाने की वजह से मुझे इस दुनिया में उतारा गया है। अब फिर से किसी खाने की चीज के लिए कुछ मांगने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे बेहतर यह है कि तुम, ओह मेरे मासूम बेटे, तुम अल्लाह के दरबार में दुआ करो, क्योंकि तुम पवित्र हो, तुम निर्दोष हो, तुम्हारी दुआ यकीनन कबूल होगी।
तब हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर नम्र हृदय से अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर अर्जी लगाई, हे मेरे रब, अपने नबी आदम के लिए कुछ फल भेज दीजिए। अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और जन्नत से ढेर सारे फल एक हूर को देकर शीस अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। वो हूर नूरानी चेहरा लिए आईं, बोली, हे शीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझे और ये सभी फल आपके लिए भेजे हैं। शीस अलैहिस्सलाम ने सभी फल लेकर अपने अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नती फल खाए, उनके चेहरे पर शांति और शुक्र का नूर छा गया। इसके बाद उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम का निकाह उस जन्नती हूर से करा दिया और हूर से कहा, ओह मेरी बेटी, अब तुम फिर से जन्नत लौट जाओ, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। एक दिन जन्नत में ही तुम्हारी शीस से मुलाकात होगी, दुनिया में नहीं। हूर ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या नबी, और नूर की तरह गायब हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लगभग 1100 साल तक जीवित रहे। इस दौरान उनकी 350 से ज्यादा औलादें हुई। उन्होंने अपने सभी बेटों और बेटियों को दुनिया और आखिरत की दोनों की शिक्षा दी थी। सिर्फ काबिल ही था जो पथभ्रष्ट हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।